پاک فوج کے مزید 3 ریٹائرڈ افسر فوجی تحویل میں لے لیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ فیض حمید سے میرا کوئی تعلق نہیں، ان کا 9 مئی سے تعلق ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ بانی PTI نے کہا فوج احتساب کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے۔ اور پاکستان میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ مریض 3 اگست کو سعودی عرب سے پشاور پہنچا تھا، طبیعت خراب ہونے پر ٹیسٹ کروایا جو پازیٹیو نکلا۔ اور کراچی میں ڈاکو شہری سے 2 کروڑ روپے چھین کر فرار، مزاحمت پر گارڈ زخمی، فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ واردات سٹاک ایکسچینج کے عقب میں ہوئی۔ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کی کلوژن تھی جنرل فیض کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا۔ بانی چیئرمین PTI کی ایما پہ، ان کی منشا پہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس دوران بھی جنرل فیض اور ان کے ساتھی بانی چیئرمین PTI سے رابطے میں تھے اور وہ سیاسی جوڑ توڑ میں بھرپور اپنا حصہ لے رہے تھے۔ گرفتاریاں صرف ایک ادارے تک محدود نہیں رہیں گی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے۔ جیسے جیسے تحقیقات ہو رہی ہیں مزید نام سامنے آ رہے ہیں، ثبوت ہیں کہ یہ سب کچھ بانی PTI کی ایما پر ہو رہا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی فیض حمید بانی PTI سے رابطے میں تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا لگتا یہی ہے جیل سے پیغام رسانی جاری تھی، اب خود کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بانی PTI کی ایما پر ملک کو غیر مستحکم کیا جا رہا تھا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا مزید گرفتاریوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے اہم قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ سہولت کار سازش میں ملوث بانی PTI ماسٹر مائنڈ ہیں۔ جنرل باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بارگین کی اور کہا فیض حمید کا نام ڈراپ کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنی چوائس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، ایک انٹرویو میں کہا ہم چاہتے تھے سینیورٹی میں جو پہلے نمبر پر ہے اس کو منتخب کر لیں، جنرل باجوہ کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے دھمکیاں دیں۔ آخری دنوں میں مجھ سے اور ملک محمد احمد خان سے 5 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا، کہا قمر جاوید باجوہ نے خود کہا تھا ایکسٹینشن نہیں لے رہا، میرے پیچھے دیگر افسران کا بھی حق ہے۔ دورہ امریکہ سمیت 3 جگہوں پر باجوہ نے صاف منع کیا۔ خواجہ صاحب جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت فیض حمید DG ISI تھے اور کور کمانڈر کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے ملک محمد احمد خان میرے بھائی اور بیٹے کی طرح ہیں، ان سے مشورہ کر کے جواب دوں گا، میں کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ ISI اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا، محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے۔ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ۔ جو چیزیں بھی ہوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ خواجہ آصف کو کوئی GHQ کے قریب بھڑکنے نہیں دیتا ہے۔ خواجہ آصف کو تو کچھ پتا ہی نہیں، انہیں GHQ کے پاس بھٹکتے بھی نہیں دیتے۔ PTI رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے DG ISI آرمی چیف کو رپورٹ کرتا ہے، DG تو اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ کیسے ہوتا رہا۔ فیض حمید سے متعلق ادارہ اپنی کارروائی خود کرے گا۔ سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ جیل اسسٹنٹ ناظم، سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے تفتیش۔ ذرائع کا کہنا ہے اڈیالہ جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال احمد سے بھی پوچھ گچھ ہوئی۔ 2 اردلی، 3 وارڈر اور 3 ہیڈ وارڈر سے بھی تحقیقات ہوگی۔ 3 یورپی ملکوں کے نمبروں پر واٹس ایپ کے شواہد مل گئے۔ محمد اکرم پر بانی PTI کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلقات کمزور کرنے کے لیے دشمن عناصر پروپیگنڈا اور جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسے تمام مذموم مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کی آرمی ویٹرنز کے اعزاز میں استقبالیے میں گفتگو، درپیش چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد و یگانگت کی اہمیت پر زور دیا۔
वेटरन्स की खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से इस्तकबालिया पाक फौज और इसके वेटरन्स के दरमियान अटूट रिश्ते का इजहार है। PTI की तबाही, मुल्क में महंगाई और महंगे बिल आई थी। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी रिलीफ कैसे देना है। नून लीग के इजलास से नवाज शरीफ का खिताब, कहा मुल्क को दिवालिया से बचाना, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। नून लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खद्दोखाल से आगाह किया। इजलास में अवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया गया। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इजलास में पंजाब में इस साल के आखिर या आइंदा साल के शुरू में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के हवाले से गुफ्तगू। वुज़रा ने अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा अफगान महाजरीन को वापस भिजवाने के लिए जल्द दूसरा मरहला शुरू करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? क्यों ना वजारत दाखिला को नोटिस करें, सारा गंद ही खत्म हो जाए। पार्लियामेंट में ऐसे मौजूआत पर बहस क्यों नहीं होती? अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? कोई ताकतवर आया होगा और कहा होगा CDA को मेरी वजारत दाखिला के मातहत कर दें। वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर बात तो कर सकते हैं। क्या वजारत दाखिला वजीर आजम ऑफिस से भी ज्यादा ताकतवर है? चेयरमैन CDA ने कहा पुलिस और इंतजामिया भी वजारत दाखिला के ही मातहत हैं। चीफ जस्टिस बोले क्या आपकी तबीयत ठीक है? आप इतने अहल नहीं कि अपने फैसलों पर अमल दरामद करा सकें? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर खंडराची बनता जा रहा है। सड़कें मानसून बारिशों के 2 स्पेल भी सह न सकी। अहम सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। छोटी गलियां मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां तो तबाह हो रही हैं। पैदल चलने वालों के लिए भी सीवरेज का पानी अजाब बन चुका। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम मामूल। अस्पतालों और स्कूलों के नजदीक ताफून बीमारियां फैला रहा है। कराची की सड़कों का मुकदमा लड़ेगा ARY न्यूज। शहर का सड़कों का हाल दिखाएगा, अहले इक़्तिदार को जगाएगा। बारिशों से शहर नहीं डूबा तो सड़कों का मसला उठा दिया। ARY न्यूज के सवाल पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। दावा किया कि शहरी इंतजामिया ने बारिशों में बेहतरीन काम किया। मानसून गुजर जाए तो टूट फूट का शिकार सड़कों की मरम्मत भी कर दी जाएगी। हमाद अजहर सदर PTI पंजाब के ओहदे से मुसाफी। हमाद अजहर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कोई डील। बदकिस्मती से बानी PTI तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। बानी PTI तक यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। PTI का एक कारकुन था और रहूंगा। PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान रशीद भी मुसाफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों को मंगल तक बाजियाब कराकर पेश करने की मोहलत दे दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तंबीह की कि मंगल तक ये मुकदमात खत्म न हुए तो फिर मुझसे गिला न करना। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। अटॉर्नी जनरल को कहें इस बार अपने वीकेंड की कुर्बानी दें, मैं तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा इसे अना का मामला ना बनाएं। पुलिस जब पता लगाना चाहे तो वो पता लगा लेती है कि बंदा किसके पास है। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी।
आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब कल जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के साथ शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध और अरशद नदीम की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की, फूल रखे। कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस की सैर कराई। कौमी हीरो ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध ने कहा, कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई, दुश्मन कुव्वतों का बयानिया खत्म हो गया। अरशद नदीम बोले, कराची वालों का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद नदीम ने IT स्टूडेंट्स के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम से मुलाकात, 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा, हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सोलर स्कीम मॉडल डिजाइन और ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तहिक घरानों की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 करने का ऐलान। वज़ीर आला ने जम अजला के 30,000 गरीब घरानों के लिए अलग सोलर स्कीम देने का भी ऐलान किया। स्कीम में बिजली लॉसेस वाले फीडर्स, पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान में झड़प के दौरान शहीद एहलकारों की तदफीन, हवालदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफानुल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जख्मी भी हुए। खवारिज के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी IT ने इंटरनेट का मसला 2 हफ्ते में हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब। सेनेटर हुमायूं ने कहा, पहले ही सरमायाकारी नहीं आ रही, इस तरह तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, फ्रीलांसर्स का 500 मिलियन रुपए का कारोबार है, उन्हें नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी हो गई। वजीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने कहा, हम 5G की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वजारत IT ने मौक़िफ़ अपनाया, ये नेटवर्क्स का मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA ने दावा किया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं आई। अफसरान की अदम दस्तियाबी के बायस फायरवॉल से मुतालिक एजेंडा मुलतवी। WHO ने मंकी पॉक्स को आलमी सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है, कॉन्गो में मंकी पॉक्स की नई किस्म की तशखीस और अफ्रीका समेत दीगर ममालिक तक फैलाव इंतहाई परेशान कुन है। इसे रोकने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इक़दाम ज़रूरी है। आलमी इदारा सेहत ने $15 लाख का फंड जारी कर दिया। कॉन्गो में मंकी पॉक्स से 450 अमवात हो चुकी हैं। वायरल इन्फेक्शन करीबी राबते से फैलता है, जिसकी अलामात में नज़ला और दाने शामिल हैं। मॉनसून का नया स्पेल शुरू हो गया। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। कराची के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्टेडियम रोड पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है, मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, डैम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। DC पंजगोर जाकिर बलोच को BLA ने शहीद किया। दबाव पड़ा तो इस दावे से लाताल्लुक हो गए, हमारे सब्र को कमजोरी ना समझें। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया, कहा रॉ फंडेड लश्कर मारा मारी कर रहा है, हुकूमत ने जवाबी हिकमत अमली बना ली है। महारंग बलोच आइन के अंदर रहकर सियासत करें तो सर आंखों पर हैं। अगर आप गंदा खेल खेलना चाहते हैं, रॉ की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं, तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। सरफराज बुगटी की शहीद डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच के वरसा से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम सियाम मना रहे हैं। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट समेत दीगर शहरों में मुजाहरे। शुरका का कहना था, कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी, जिला डोडा में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया।
दोहा में गजा जंगबंदी के मुज़ाकरात शुरू। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में मुसाद और CIA चीफ समेत मिस्री इंटेलिजेंस सरबराह भी शरीक हैं। दहशतगर्द इसराइल का 10 माह से जारी जंगी जुनून थम न सका। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों ज़ख्मी। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,000 से ज़ायद हो गई। ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स कंसोर्शियम की मुश्तरका कामयाबी 2024 से 26 की PCB दो तरफा और सह मुल्की सीरीज के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन अगले 2 साल पाकिस्तान में तमाम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मैचेस A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे। इनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का सह तरीकी सीरीज भी शामिल। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए ये बड़ी कामयाबी है। ARY और A स्पोर्ट्स खेलों के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। A स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट सामने ला रहा है। डेढ़ साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तैयारियां जारी। बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है स्पिनर्स का किरदार टेस्ट में बहुत अहम होता है। पाकिस्तान को स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत है जिसके लिए PCB जरूर सोचेगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। सिक्योरिटी वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची के मुख्तलिफ एरियाज का दौरा किया। स्टेडियम के तामीराती काम का भी जायजा लिया। PCB हुकाम ने इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ्द को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रवा बरस अक्टूबर में शेड्यूल है।